الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اب آؤ یوٹیوب پر 9 سیکنڈ سیریز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہندوستان اور پاکستان کے اندر پڑھائی جانے والی نحو کی مشہور کتاب ہے، جس کا نام ہدایت النحو ہے۔ اس کتاب کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر یہ کتاب ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے اور ابتدائی درجوں میں پڑھائی جانے والی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ عام طور پر اس مادے کی وضاحت صحیح سے طلبہ کے سامنے نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے وہ اس مادے کے اندر کمزور ہوتے ہیں اور نحو میں کمزوری کی وجہ سے عربی زبان میں ان کے یہاں کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ 8 سال ایک طالب علم مدرسے کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی نحو میں کمزوری کی وجہ سے عربی زبان کے اندر کمزور ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے تاکہ طلبہ نحو کے اندر مہارت حاصل کر سکیں، تاکہ اپنی عربی زبان مضبوط کر سکیں، قرآن کریم کو پڑھ سکیں اور احادیث نبویہ کو سمجھ سکیں۔ تو اس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی، اور اس کتاب کے مصنف کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ جتنی معلومات ان کے سلسلے میں دستیاب ہیں وہ صرف ان کا نام اور سن وفات ہے۔ اس کتاب کے مصنف ابو الحیان سراج الدین اودھی ہیں، جن کی وفات 758 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے نحو کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں اور علم صرف کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ نحو کا مادہ یہ عربی سیکھنے کے لیے انتہائی اہم مادہ ہے۔ اس مادے کا وضع کس نے کیا ہے، اس کو بنایا کس نے ہے؟ پہلی بار تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فن کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ فن عربوں کے یہاں پہلے سے موجود تھا، جب سے عربی زبان پائی جاتی ہے تب سے یہ فن بھی موجود ہے، اس لیے کہ عربی زبان قواعد کی بنیاد پر اور اصول اور ضوابط کی بنیاد پر موجود ہے۔ شروع سے عرب لوگ اپنی زبان سیکھتے تھے، اس کو بولتے تھے اور اس کے اندر شعر کہتے تھے، نثر میں تقریریں کرتے تھے، اصولوں کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پر۔ لیکن یہ قواعد، یہ اصول کہیں باضابطہ لکھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں غلطی کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن جب دوسری قوموں نے اسلام قبول کیا، اعجمیوں نے اسلام قبول کیا، تو قرآن کریم کو پڑھنے میں انہوں نے غلطیاں کیں، احادیث نبویہ کو پڑھنے میں، سمجھنے میں غلطیاں کیں۔ تو ان غلطیوں سے مسلم امت کو بچایا جا سکے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذمہ داری دی کہ نحو کے اصول اور ضابطے وہ متعین کریں اور اس کو ایک جگہ جمع کر دیں، تاکہ ان اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر لوگ اپنی عربی سیکھ سکیں اور عربی کو مضبوط کر سکیں، قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور فہم حاصل کر سکیں۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، ہدایت النحو، تاکہ نحو کی بنیادی مسائل کو اس کے اندر جمع کر دیا جائے، اور آسان عبارت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے تاکہ ابتدائی درجہ کے طلبہ اور طالبات اس کو صحیح سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں اور عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں مقدمے سے پہلے جو ابتدائی باتیں ہیں اسے بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مقدمہ، اور اس کے بعد جو اصول اور قواعد آگے بیان کیے جائیں گے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کتاب کی شروعات صاحب کتاب بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اہم کام ہو، کوئی بھی شرافت والا کام ہو، شریف کام ہو، اہم کام ہو، تو ہمیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اور اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کوئی بھی اہم کام جب ہم شروع کریں تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور یہی معلمین امت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں،
تو اسی سلف کے طریقے پر چلتے ہوئے صاحب کتاب نے بھی شروع میں کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے اس کے لیے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام، بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ والصلاۃ علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور اللہ رب العالمین کی برکتیں ہوں اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام۔ یہ عبارت ہے، ابتدائی عبارت ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ یہ مختصر سی کتاب ہے نحو کے سلسلے میں۔ فہذا مختصر فی النحو، نحو کے سلسلے میں ایک مختصر سی کتاب ہے جو کیسی ہے؟ مضبوط، محفوظ ہے، بلا ضرورت چیزوں سے، حشو و زوائد سے، یعنی بلا ضرورت چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ بلا ضرورت باتیں یا ایسی باتیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اور ایسی تطویل سے، ایسی حشو و زوائد سے کتاب پاک ہے۔ فہذا مختصر فی النحو، یہ مختصر سی کتاب ہے نحو کے سلسلے میں۔ مضبوط، مضبوط کے معنی محفوظ کے ہیں، جو حشو و زوائد سے پاک ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ، اس کے اندر میں نے نحو کے اہم باتوں کو جمع کیا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس مختصر سی کتاب کے اندر ہم نے نحو کی اہم باتوں کو جمع کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی کتاب پر نحو کا علم ختم نہیں ہوتا ہے۔ نحو سے متعلق تمام باتوں کو صاحب کتاب نے جمع کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نحو سے متعلق بنیادی باتیں جو ایک ابتدائی طالب علم کو جاننا چاہیے، وہ باتیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کس طرح سے بیان کی گئی ہیں؟ علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر۔ تو کافیہ کیا چیز ہے؟ نحو کے سلسلے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زمانے میں مصنفین نے لکھی ہیں، قدیم مصنفین نے، قدیم نحویوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور جدید دور میں اب بھی لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، اب بھی اس پر بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں۔ تو جس زمانے میں کتاب لکھی گئی اس زمانے میں نحو کی ایک مشہور کتاب کافیہ، جس کا پورا نام ہے الکافیۃ فی علم النحو، یہ کتاب بہت زیادہ مشہور اور معروف تھی، لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ لیکن یہ ابتدائی جو طلبہ ہیں، مبتدی طلبہ ہیں، ان کے لیے کتاب نہیں تھی۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے بھی نحو کی کوئی کتاب پڑھی جائے تاکہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو، ہدایت النحو کو، ہم نے جو نحو کی مشہور کتاب الکافیہ فی علم النحو ہے، اس کے ترتیب پر لکھا ہے۔ اس کے اندر نحو کو پیش کرنے کی جو ترتیب ہے کہ پہلے اسم کا تذکرہ ہے، پھر فعل کا تذکرہ ہے، پھر حرف کا تذکرہ ہے، تو اس انداز میں ہم نے بیان کیا ہے۔ کافیہ کے ترتیب پر اس کتاب کی ترتیب رکھی ہے، اور کافیہ فی علم النحو جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں جمال الدین عثمان بن عمر بن ابی بکر ابن الحاجب، یہ اس کے مصنف ہیں جن کی وفات 646 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کافیہ کی ترتیب پر ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، مبوباً و مفصلاً، اس کی باتوں کو جو ہم نے باب در باب بیان کیا اور فصل در فصل بیان کیا ہے۔ تو کسی بھی موضوع پر ایک کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کو مسائل کے اعتبار سے الگ الگ حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ موٹے طور پر جب کتاب کی تقسیم کی جاتی ہے تو جن حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان حصوں کو ہم قسم کہتے ہیں۔ پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، اس کتاب کو بھی آگے بیان کریں گے کہ ہم نے اس کتاب کو بھی قسموں میں بانٹا ہے۔ پھر ایک
किस्म के मसाइल को एक साथ जब जमा करते हैं तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। तो उनके अंदर भी जब हम एक तरह के मसाइल को एक साथ जमा करते हैं तो वहाँ पर होता है बाब, एक किताब के अंदर बाब होता है, और फिर एक बाब के अंदर भी फसल होता है, यानी एक बाब के अंदर जो मालूमात बयान की जा रही है उन मालूमात में भी कई किस्म की मालूमात हैं। तो एक किस्म की मालूमात को जो हम जमा करते हैं तो एक फसल के अंदर जमा करते हैं। तो ये किताब मुसन्निफ ने हिदायतुन्नहव जो है आपके सामने पेश की है, उसको फिर कह रहे हैं आगे बयान करेंगे कि हमने 3 किस्मों में बयान किया है। फिर हर किस्म के अंदर अलग अलग बाब हैं और हर बाब के अंदर अलग अलग फसल है। तो इस तरह से किताब के अंदर जो भी मालूमात बयान की गई हैं उसको उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से अलग अलग बयान किया है। हर कायदे को एक बाब और एक फसल के तहत बयान किया है ताकि सारी बातें वाज़ेह हो सकें, दिमाग में तालिब इल्म के बैठ सकें। तो कह रहे हैं कि मुबव्वबन व मुफस्सलन, इस किताब को हमने बाब दर बाब और फसल दर फसल बयान किया है। बिइबारतिन वाज़िहतिन, वाज़ेह इबारत में, क्योंकि इससे पहले नहव की बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो अपनी इफादियत के एतबार से बड़ी अहम हैं, लेकिन उनकी इबारत ऐसी है कि वो वाज़ेह नहीं है, इंतहाई मुख्तसर हैं, और उसकी वजह से बाद के आने वाले मुसन्निफीन ने उस किताब की शरह लिखी। जब किसी ने शरह लिखी तो इतनी बड़ी शरह लिख दी कि वो भी बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बातों पर मुश्तमिल हो गई, तो बाद में आने वालों ने उसको मुख्तसर किया। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा है नहव की किताबों के सिलसिले में। किसी ने बहुत जामे किताब लिख दी कि इंतहाई मुख्तसर लिख दी, किसी ने उसकी तशरीह कर दी, किसी ने तशरीह की भी जो है इख्तिसार किया। तो इन्होंने बयान किया कि इन तमाम चीज़ों से हमने अपनी किताब को पाक रखा है। जो भी बातें हमने अपनी किताब के अंदर बयान की हैं वो वाज़ेह इबारत में है, मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मा इरादिल अमसिलती फ़ी जमीअ मसाइलिहा, तमाम मसाइल के अंदर नौ के जो भी मसाइल हमने बयान किए हैं उन तमाम मसलों के सिलसिले में मिसालें भी बयान की हैं, क्योंकि सिर्फ कायदा पढ़ कर के कोई बात समझ में नहीं आती है, कायदे के साथ मिसाल भी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जितने भी मसाइल हमने बयान किए हैं उन तमाम मसाइल की मिसालें भी दी हैं। मिन गैर तअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलली, लेकिन हमने दलीलों को और इल्लतों को बयान नहीं किया। कायदा बयान किया है, कायदे की मिसाल बयान की है, और उस कायदे की दलील क्या है, उस कायदे की इल्लत क्या है, ये हमने बयान नहीं किया है। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि मिसाल, दलील और इल्लत में क्या फ़र्क, किसे मिसाल कहते हैं, किसे दलील कहते हैं और किसे इल्लत कहते हैं। तो दलील की हम आपको एक मिसाल दे रहे हैं कि अरबी ज़ुबान के अंदर एक फ़ेल है जाला। अब जाला किस बाब से आता है हमें नहीं पता। हमने कुरान करीम को पढ़ा तो देखा वजाअल शम्सा सिराजा, अल्लाह ने बयान फरमाया फ़िल माज़ी इस्तेमाल हुआ है, मफ्तूहुल ऐन है, ऐन कलमे पर फतह है, जाअल शम्सा सिराजा। फिर दूसरी जगह पर इसी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुज़ारे इस्तेमाल किया है, वयजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, यहाँ भी ऐन कलमा और फतह है। तो माजी में भी ऐन कलमा मफ्तूह है, मुज़ारे में भी ऐन कलमा मफ्तूह है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये बाबे फतहा यफ्तह से ये फ़ेल आता है, जाला या जालो आता है। अब इसकी बुनियाद पर हमने इस फ़ेल को कहीं पर कोई जुमला बनाया, वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया बाबे फतहा से। किसी ने पूछा कि कैसे तुमने इस फ़ेल को बाबे फतहा से इस्तेमाल किया है, क्या इसकी दलील है। तो दलील के तौर पर हम हुज्जत के तौर पर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमाया है कि वजाअल शम्सा सिराजा, फ़ेल माजी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया और ऐन कलमा मफ्तूह है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारा खैर व बरकत बना दिया है। तो यहाँ पर ऐन कलमा मफ्तूह है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब माजी भी ऐन कलमा मफ्तूह है, ऐन कलमा भी मफ्तूह है, तो इससे जाला के अंदर ऐन कलमा मफ्तूह है और फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी ऐन कलमा मफ्तूह है। तो इससे पता चला कि बाबे फतहा यफ्तह से है। तो कुरान करीम से या हदीस से या कलाम अरब से जो चीज़ बतौर हुज्जत के पेश की जाए उसको दलील कहा जाता है। तो ये दलील है। और इल्लत किसे कहते हैं, किसी मसले का जो अकली सबब है कि ऐसा हुआ क्यों, उसकी इल्लत क्या है, उसका सबब क्या है। तो किसी चीज़ की अकली
सबब बयान की जाए उसको इल्लत कहा जाता है। और नकली दलील पेश की, नकली तौर पर हुज्जत बयान की जाए किसी चीज़ की, कुरान करीम में फला कलमा इस तरह से इस्तेमाल हुआ, हदीस में ये कलमा इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, या कलाम अरब में कलमा इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, फला कौम की ज़ुबान और लहजे में कलमा इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, तो इसे हम दलील कहेंगे। और क्यों इस्तेमाल हुआ है, फला चीज़ फला बाब से क्यों आई है, तो इस तरह के जो अकली सबब बयान किया जाता है तो अकली सबब ये इल्लत कहलाता है। और उसके बाद जब एक कायदा बयान कर दिया जाए तो कायदे की वजाहत के लिए उस कायदे की बुनियाद पर मज़ीद जुमले हम बयान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसाल कहते हैं। मसलन किसी के सामने मुब्तदा और ख़बर का कायदा बयान किया जाए कि मुब्तदा की ये खुसूसियात हैं और ख़बर की ये खुसूसियात हैं, फिर उसके बाद कहा जाए कि जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, मिसाल के तौर मुब्तदा ख़बर की मिसाल दी जाए। तो अब ये ज़ैदुन आलिमुन एक कायदा हमने बयान किया कि मुब्तदा और ख़बर का ये कायदा, उसके बाद कहा कि उसकी मिसाल देते हुए कि ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। तो ये ज़ैदुन आलिमुन जो जुमला हम बयान कर रहे हैं ये मिसाल है। तो एक कायदा बयान किया जाए, कायदे के बाद उस कायदे की तत्बीक करते हुए कोई जुमला बनाया जाए तो वो जुमला मिसाल कहलाता है। और कुरान करीम में या हदीस में या कलाम अरब में कोई जुमला इस्तेमाल हुआ है, कोई कलमा किसी तरह से इस्तेमाल हुआ है, किसी कलमे पर कोई ख़ास एराब आया हुआ है, उसको हुज्जत बनाते हुए हम जो है पेश करें तो ये क्या कहलाएगा, ये दलील कहलाएगा। और उसकी अकली दलील, अकली हुज्जत हम अगर पेश करें, अकली सबब बयान करें तो ये इल्लत कहलाएगा। तो इल्लत, सबब और मिसाल ये तीन बातें हैं। तो साहिब किताब कहते हैं कि हमने कायदा बयान किया है, कायदे के बाद मिसालें बयान की हैं, और उन मिसालों की या उन कवायद की इल्लत को हमने बयान नहीं किया है, उसके दलीलों को बयान नहीं किया है, इसलिए कि एक इब्तदाई दर्जे के तालिब इल्म को उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसे जिस बात की ज़रूरत होती है वो ये है कि एक तालिब इल्म कायदे को जान ले और उसके बाद मिसालों को जान ले, यही उसके लिए काफ़ी होता है। आगे उसकी इल्लत भी बयान कर रहे हैं कि हमने दलीलों को और इल्लतों को, कवायद की दलील और कवायद की इल्लत क्यों नहीं बयान किया है, लिअल्ला युशव्विश ज़हनुल मुब्तदी, कि इब्तिदाई तालिब इल्म का जहन तशवीश में ना पड़ जाए, इंसान खलफसार का शिकार ना हो जाए कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, और इन्हीं लंबी चौड़ी बातें तालिब इल्म ना समझ सके। तो इसलिए साहिब किताब कहते हैं कि हमने कवायद की मिसालें बयान की हैं, लेकिन उन कवायद की दलीलों को, उन कवायद की इल्लतों को बयान नहीं किया है, ताकि इब्तिदाई तालिब इल्म के जहन को तशवीश ना लायक हो जाए। अन फहमिल मसाइल, मसाइल को समझने में, मसाइल को समझने में तालिब इल्म का जहन तशवीश का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमने जो मसाइल बयान किए हैं उन मसाइल की दलीलों और इल्लतों को बयान नहीं किया है, सिर्फ मिसालों पर इक्तिफा किया है। वसम्मैतु बिहिदायतुन्नह, और इस किताब का नाम हमने हिदायतुन्नह रखा है। क्यों हिदायतुन्नह इस किताब का हमने नाम रखा है, इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है, तो बयान करने रजाअन अन यहदी अल्लाह तआला बिहि तालिबीना, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के नाम का लिहाज रखते हुए इस किताब के पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुंचा दे, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहनुमाई अता फरमा दे तलबा को इस किताब के ज़रिए से, यानी नहव की महारत अता कर दे, अरबी ज़ुबान के अंदर उन्हें मजबूत कर दे। अरबी ज़ुबान को समझने के लिए फ़न नहव ज़रूरी है, तो फ़न नहव के जो कवायद हैं, उसूल हैं, उन उसूल और कवायद को समझने में अल्लाह रब्बुल आलमीन तलबा की रहनुमाई करे, इसलिए हमने इस किताब का नाम हिदायतुन्नह रखा है। वरतब्तुहु अला मुक़द्दमतिन, इस किताब की तरतीब क्या, तरतीब बयान करते हुए कहते हैं कि हमने इसको मुरतब किया है एक मुकदमे के ऊपर। वसलासति अक़सामिन, और 3 किस्मों के अंदर, तो किताब को 3 बड़े हिस्सों में उन्होंने बांट दिया है। व खातिमतिन, और एक खात्मे पर। तो किताब की तरतीब क्या है, किताब के अंदर एक मुकदमा है, 3 किस्में हैं और एक खात्मा है। बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, गालिब और बहुत ज़्यादा जानने वाले बादशाह की तौफीक से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से हमने इस किताब को लिखा है और इसको एक मुकदमे में 3 अक़साम में और एक खात्मे में बांटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गलबा वाला है और बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, तो उसी से हम तौफीक तलब करते हैं कि वो हमें हमारे इस काम के अंदर हमारी मदद करे और उसकी तौफीक और उसकी नुसरत से इस किताब को हम मुकम्मल कर सकें।
तो अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि मुकद्दमा क्या होता है। तो कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो वो किताब कैसी है, उस किताब के अंदर किस तरह की बातें पेश की गई हैं, उस किताब की तरतीब क्या है, उस किताब का मौजू क्या है, और उस किताब को लिखने में साहिब किताब का मनहज क्या है, ये तमाम बातें मुकद्दमे के अंदर बयान की जाती हैं, ताकि कोई इंसान उस मुकद्दमे को पढ़ करके उस किताब के बारे में मालूमात हासिल करे कि ये किताब किस तरह की है। तो मुकद्दमा हर किताब के अंदर होता है और उसके अंदर उस किताब का एक तरह से तारुफ पेश किया जाता है कि ये किताब किस तरह की है। फिर उसके बाद असल किताब शुरू होती है, उसको अलग अलग जो है तकसीमात उसकी की जाती हैं, बड़े पैमाने पर उसको बांटा जाता है अलग अलग किस्मों में, तो उसको हम किस्म कहते हैं। बड़े पैमाने पर जो तकसीम होती है वो किस्म के एतबार से होती है। फिर एक किस्म की मसाइल को जो हम एक साथ जमा करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के मसाइल होते हैं। तो किसी किस्म को तकसीम करते हैं अबवाब के अंदर, फिर अबवाब को तकसीम करते हैं फसलों के अंदर, फिर फसलों की भी तकसीम होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और नहीं पड़ती है तो नहीं होती है। तो ये किताब के सिलसिले में इब्तिदाई बातें हैं जो साहिब किताब ने पेश की हैं। एक बार उसका फिर से तर्जुमा देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे कायनात का पालनहार है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और बेहतरीन अंजाम परहेज़गारों के लिए है। वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मद, अल्लाह की बरकतें नाजिल हों उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही, और आपके आलो औलाद पर, व अस्हाबी अजमईन, और आपके तमाम सहाबे किराम पर। अम्मा बाद, फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़िन नहवी, ये मुख्तसर सी किताब है नहव के सिलसिले में जो हश्व व ज़वाइद से पाक है। जमाअतु फ़ीही मुहिम्मातिन नहवी, मैंने इसके अंदर नहव की अहम बातों को जमा कर दिया है। अला तरतीबिल काफ़ियती, काफ़िया किताब की तरतीब पर। मुबव्वबन व मुफस्सलन, बाब दर बाब और फसल दर फसल, यानी बाब बाब में इसको अलग अलग अबवाब कायम करके और अलग अलग फसलें कायम करके। बेइबारतिन वाज़िहतिन, वाज़ेह इबारत के साथ। मा इरादिल अम्सिलती फ़ी जमीअ मसाइलिहा, तमाम मसाइल के अंदर, तमाम कवायद के अंदर मिसालें पेश करके। मिन गैर तारुदिन लिल अदिल्लति वल इलली, बगैर दलीलों और इल्लतों को बयान किए हुए। लिअल्ला युशव्विशु ज़हनुल मुब्तदी, ताकि इब्तिदाई तालिब इल्म का ज़हन तशवीश में ना पड़ जाए। अन फ़हमिल मसाइल, मसाइल को समझने में, ताकि इब्तिदाई तालिब इल्म का ज़हन मसाइल को समझने में तशवीश का शिकार ना हो जाए। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा है। रजाअन अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीना, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से तलबा की रहनुमाई फरमाए। वरतब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन, और मैंने इस किताब की तरतीब इस तरह से रखी है कि एक मुक़द्दमा है, व सलासत अक़सामिन, 3 किस्में हैं, व ख़ातिमतिन, और एक ख़ातिमा है। बेतौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, मैंने इस किताब की जो तरतीब रखी है और इस किताब के अंदर जो बातें बयान की हैं वो गलबा वाले और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले बादशाह की तौफीक से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगली मालूमात आपको अगली वीडियो में दी जाएंगी, और इस वीडियो के अंदर जो बातें आपको बताई गई हैं उसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। जो बातें समझ में ना आए आपको, आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं।